Hello everyone, my name is Ritesh Singla. I welcome all of you to the 19th lecture of our core course Real Analysis. So as you can see, today we will continue our discussion on the topic subsequence and we will finish subsequence today. So before proceeding further, let us briefly recall what we have already studied in subsequence topic. So first of all, we have talked about subsequence, that what actually subsequence is, its definition, right? Then we have seen that if some sequence is convergent, then its subsequence, or I should write all of its subsequence, all of its subsequence will be convergent and will converge to same limit. Fine. We have also seen some examples where the subsequences were converging, but the sequence was not converging. ठीक है? After that, we have seen monotonic subsequence theorem, which is different from monotonic convergence theorem, but it says every sequence has a monotonic subsequence. Fine. Then we have talked about Bolzano-Weierstrass theorem, but it says every bounded sequence has a convergent subsequence. So we have seen that here the keyword bounded is important. This keyword bounded is important because if the initial sequence is not bounded, then we may not be able to find any convergent subsequence. Okay. After that, we have seen one more result, that if xn is some bounded sequence, again here bounded keyword is important, and every convergent subsequence of xn is converging to same limit, then the initial sequence या फिर original sequence will be convergent and will converge to the same limit, to the same limit. So again here there are some keywords which were important. We have seen that, for example, this bounded keyword was important, and this every convergent subsequence, this is important, right? कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस थी, उसकी हर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस भी जितनी भी सबसीक्वेंस हो सब कन्वर्ट्स करे, ऐसा जरूरी नहीं है. मैं आपको इसका एक एग्जांपल, वैसे हमने बात की थी लेकिन फिर भी एग्जांपल दे देता हूं. एग्जांपल हमने क्या डिस्कस किया था, ये 1 1/2 3 1/4 5 1/6 एंड सो ऑन. तो इसकी एक सबसीक्वेंस, ओके इट इज नॉट बाउंडेड, सॉरी. So let us take a bounded
bounded subsequence. So let us take -1 to the power n only. N belongs to n. So in this example, the sequence is bounded, right? But it has two subsequences, namely -1, and so on -1, and another subsequence was 1, 1, and so on 1. But both are these subsequences are converging to different limit, right? So ये एग्जांपल हमने देखा था कि यहाँ पे एवरी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस का क्या मतलब है कि एवरी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस सेम लिमिट पे जाए, तब हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने सबसीक्वेंसेस बनाई। कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस यही है, या तो ये है या फिर ये है। ठीक है, लेकिन ये अलग अलग लिमिट के ऊपर जाने लग रही थी, तो इसलिए सेम लिमिट भी हमारा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड था इसके अंदर कि जितनी भी सबसीक्वेंसेस है वो सेम लिमिट पे जाए, और जितनी भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई भी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, उसके अंदर कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस हो ही हो। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सो एग्जांपल मैं कैसे डिफाइन करूंगा इसके अंदर से -1, 1 and say 1.2, then -1, 1, 1/3, -1, 1, 1/4, and so on. Okay, so if you see any convergent subsequence, so convergent subsequence कौन सी होगी इसकी? convergent subsequence वो किस टाइप की सीक्वेंस होगी? 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये किसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस टाइप होगी? या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस किस टाइप की दिख रही होगी? यहाँ पे कुछ फाइनाइटली मैनी टर्म्स होगी, उसके बाद ये 1/n की तरह बिहेव करेगा, तो ये इसकी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, राइट? बट इसके अंदर इसकी एक और सबसीक्वेंस है -1, 1, -1, 1 एंड सो ऑन। इट इज ऑल्सो सबसीक्वेंस, राइट? ये भी तो एक सबसीक्वेंस ही है उसकी, लेकिन ये क्या है? कन्वर्जेंट नहीं है, तो इट इज ऑल्सो सबसीक्वेंस बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट। फाइन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये वाली जो सीक्वेंस है इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल इस टाइप की सीक्वेंसेस को कंसीडर करेंगे। तो थ्योरम की हर कीवर्ड इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर एक्सन कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, सबसे पहले सीक्वेंस का बाउंडेड होना जरूरी है, उसके बाद उसकी जितनी भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, जितनी भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, वो अगर सेम लिमिट पे जाने लग रही है, तो हमारी जो सीक्वेंस है, इनिशियल सीक्वेंस थी, वो भी कन्वर्जेंट हो जाती है और वो सेम लिमिट पे ही जाती है। ठीक है, चलिए ये सब कुछ हम हमारे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पहले पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप रियल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहां जाके सारे के सारे पुराने चैनल वीडियोस देख सकते हैं, और उनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक किस के बारे में है? लिम्फ सुप एंड लिमिन्फ। ठीक है, तो सुप्रीमम एंड इन्फीमम आपने पढ़ा हुआ है, हमने बात की हुई है सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बारे में, रिकॉल कर लेते हैं। सुप्रीमम ऑफ अ सेट एस, वो क्या होएगा? लेट एस बी एनी सेट, देन U belongs to R will be a supremum if and only if S is less than equal to U for all S belongs to S, and if V is less than U, then
वी कैन नॉट बी द अपर बाउंड। हमने इसको क्या लिखा था, सुप्रीमम को लीएस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड। इनफीमम हमने क्या लिखा था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ये चीज हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब ये लिम्ब सुप और लिम्ब इन्फ क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर हमारे समझ में आ जाएगा कि हम क्या डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप देखिए इसको ऐसे, जैसे एक सीक्वेंस है उसको लिखिए 3, देन से 2, देन 3 माइनस 1/2, 2 प्लस 1/2, देन 3 माइनस 1/3, 2 प्लस 1/3, 3 माइनस 1/4, 2 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, आपसे ये पूछूं कि सुप्रीमम क्या होगा इसका, तो सुप्रीमम आप कहेंगे सर देखिए कोई भी पॉइंट है वो 3 से तो छोटा ही है भाई, ये भी 3 से छोटा, सेकंड टर्म भी 3 से छोटी है और बाद में तो कम टर्म सी आ रही है, तो सबके सब 3 से छोटी है। इन्फीमम की अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर देखिए 2 है, क्योंकि बाकी टर्म 2 प्लस ही है समथिंग, तो इन्फीमम 2 है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम तो आपने इसका बड़ी आराम से निकाल दिया। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है, इसी सीक्वेंस के अंदर अगर मैं फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दूं, इफ यू इग्नोर द फर्स्ट टर्म, ठीक है, इफ वी ड्रॉप द फर्स्ट टर्म देन सुप्रीमम क्या बन जाएगा मेरा, 3 माइनस 1/2 ऑफ कोर्स, विच इज नथिंग बट 5/2, एंड इनफीमम अभी भी मेरा 2 ही है। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिकली क्या किया, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को आपने एक बार के लिए छुपा दिया। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इस वाले टर्म को आपने एक बार छुपा दिया, बाकी टर्म्स में आप देख रहे हैं सबसे बड़ी टर्म्स कौन सी है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स रिमूव कर दूं, इफ वी ड्रॉप फर्स्ट 2 टर्म्स देन सुप्रीमम अभी भी क्या है, 5/2, लेकिन इन्फीमम बदल जाएगा। इन्फीमम मेरा क्या हो जाएगा, इसका इन्फीमम सॉरी अभी भी 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, इन्फीमम मेरा 2 ही है। अगर मैं इसकी पहली से 5 टर्म्स रिमूव कर देता हूं, 1 2 3 4 5, ओके, सपोज वी ड्रॉप फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप कहेंगे सर सिंपल सी बात, ओके आई एम सो सॉरी, एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने गलत कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये प्रोबेबली रॉन्ग हो रही है, क्योंकि 3 माइनस 1/3 ऑफ कोर्स 3 माइनस 1/2 से बड़ा है, तो सुप्रीमम लिखना जायज नहीं है। सो प्लीज पार्डन मी फॉर दिस, let me construct a good example to make you understand this stuff. Yeah, so example मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, से 3, then say 2, then say 3 plus 1/2, then 2 minus 1/2, then 3 plus 1/3, 2 minus 1/3, 3 plus 1/4, 2 minus 1/4। ठीक है, अगर इससे मैं आपका सुप्रीमम पूछूं तो आप जानते हैं सुप्रीमम क्या होगा इसका, 3 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 7/2, राइट। ये वाली जो थर्ड टर्म है वो सबसे बड़ी है।
इन्फीमम की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा हो जाएगा 2 माइनस 1/2 विच इज नथिंग बट 3/2 जो मेरी फोर्थ टर्म है, राइट। बट इफ वी ड्रॉप फर्स्ट 4 टर्म्स, बेसिकली जो सब सीक्वेंस मेरी बन रही है वो किस टाइप की बन रही है, 3 प्लस 1/3, 2 माइनस 1/3, 3 प्लस 1/4, 2 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे आपसे सुप्रीमम पूछूंगा तो आप कहेंगे सर इट इज 3 प्लस 1/3 और इन्फीमम है मेरा 2 माइनस 1/3, 10/3 एंड 5/3। सही बात है। ऐसे ही अगर मैंने इसकी दो टर्म्स और ड्रॉप कर दी, सपोज हमने इन दो टर्म्स को ड्रॉप कर दिया, तो जो नया सुप्रीमम बनेगा न्यू सुप्रीमम क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दो टर्म्स को ड्रॉप कर देता हूं तो सुप्रीमम बन जाएगा आपका 3 प्लस 1/4 और इन्फीमम बन जाएगा 2 माइनस 1/4, राइट। तो आप ऑब्जर्व करें तो मेरा जो सुप्रीमम है वो बेसिकली घट रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं कि टर्म्स को कम करने लग रहा हूं। टर्म्स को जब मैंने कम किया तो सुप्रीमम मेरा क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके घट रहा था, और जो मेरा इन्फीमम है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। समझ में आई बात। देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैं आपको कह रहा हूं पहले आपके पास 100 नंबर है, 1 से लेके 100 तक, नंबरिंग उनमें कुछ भी हो सकती है, 100 डिजिट्स है, तो उनके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो ढूंढू मैं, वो मेरा इन्फीमम है। और जो सबसे बड़ा नंबर है वो ढूंढू तो वो मेरा सुप्रीमम है। अब मैंने पहला नंबर हटा दिया तो मेरा सुप्रीमम और इन्फीमम में से कोई चीज बदल भी सकती है, क्योंकि हो सकता है जो पहला नंबर था वो सबसे छोटा नंबर हो तो इन्फीमम बदल जाएगा, जो सबसे पहला नंबर था वो सबसे बड़ा नंबर होता तो सुप्रीमम बदल जाता। वही केस यहाँ पे होने लग रहा है कि जब मैंने कुछ टर्म्स मेरी एक बार के लिए ड्रॉप की तो मेरा सुप्रीमम है वो कम हो गया। जैसे जैसे मैं टर्म्स को ड्रॉप करता जाऊंगा सुप्रीमम मेरा धीरे 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 करके घटता जाएगा, ठीक है, और इन्फीमम मेरा धीरे धीरे करके घटता जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। इफ वी ड्रॉप certain terms one by one from the sequence, the supremum of the resulting sequence or resulting subsequence, I should write, resulting subsequence will continue to decrease and infimum will rise, infimum will increase। ठीक है, तो सुप्रीमम मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके घटता जा रहा है। पहले कुछ U1 था, फिर U2 हुआ, फिर U3 हुआ। ठीक है, अब अगर कोई चीज घट रही है तो मैं उसका क्या देखता हूं, अगेन अगर कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस टाइप है, जो सुप्रीमम है वो एक डिक्रीजिंग नंबर्स है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट हमने पहले ही पढ़ी हुई है, क्या होती है, इनफीमम। तो बेसिकली जो लिम्ब सुप हम लिखते हैं वो क्या होता है, इनफीमम होता है। किस सेट का, supremum of xn such that n is greater than equal to n, और यहाँ पे n belongs to n कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं a1 सेट को ले रहा हूं supremum of xn such that n greater than equal to 1, a2 सेट को ले रहा हूं supremum of xn such that n is greater than equal to 2, ऐसी जो am सेट है उसको अगर मैं लिख रहा हूं सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस xn, लेकिन पहली m टर्म्स छोड़ के, तो इन सब टर्म्स का जो इनफीमम होगा, इनफीमम ऑफ a1 a2 एंड सो ऑन इज माय लिम्ब सुप। डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी आपको, वापस एक बार इसको सिंपल डेफिनेशन के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। कहने की बात क्या है कि आपको कोई भी एक सीक्वेंस गिवन थी x1 x2
x3, x4 एंड सो ऑन। इस टाइप की आपको एक सीक्वेंस गिवन थी। आपने पहले जो सुप्रीमम देखा वो इन सारे टर्म्स का सुप्रीमम देखा, ठीक है। उसको आपने लिखा सुप्रीमम ऑफ x1, x2 एंड सो ऑन। उसको आपने मान लीजिए u1 लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, सुप्रीमम आपने देखा केवल इन टर्म्स का, ठीक है। उसको आपने फिर क्या लिखा, सुप्रीमम ऑफ x2, x3 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने क्या किया, सुप्रीमम देखा अगली वाली टर्म्स का, ठीक है। तो उसको आपने लिखा सुप्रीमम ऑफ x3, x4 एंड सो ऑन, जो आपका हो गया u3। अब आप जानते हैं u1 आपका हमेशा u2 से बड़ा होगा, u3 से बड़ा होगा एंड सो ऑन। तो जो लिम सुप है मेरा, वो मेरा बेसिकली क्या है, इन्फीमम ऑफ ui, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे लिम इन्फ निकालना होता, अगर मुझे लिम इन्फ की डेफिनेशन पता करनी होती, तो मैं क्या देखता, पहले इन सभी सीक्वेंसेस का सुप्रीमम देखता, सॉरी इन्फीमम देखता। तो हम क्या करते, सबसे पहले इन्फीमम देखते, x1 x2 अप टू, उसको मैं v1 लिखता। इन्फीमम और फिर मैं देखता x2, x3 एंड सो ऑन, उसको मैं v2 लिखता। फिर मैं इन्फीमम देखता x3, x4 और बाकी सारी टर्म्स का, उसको मैं v3 लिखता। तो आप जानते हैं v1 आपका v2 से छोटा होगा, वो v3 से छोटा होगा एंड सो ऑन। तो जो लिम इन्फ होगा आपका यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ ऑल दीज vi's, ठीक है। पहले पूरी सीक्वेंस का इन्फीमम देखा, फिर फर्स्ट टर्म को ड्रॉप करके बाकी सीक्वेंस का इन्फीमम देखा, फिर पहली दो टर्म्स को ड्रॉप करके बाकी सीक्वेंस का इन्फीमम देखा। ये सभी इन्फीमम को एक को सामने रख के उन सबका जो सबसे बड़ा नंबर है जो सुप्रीमम है, वो हमारा हो जाता है लिम इन्फ, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो इन्फीमम ऑफ एक्सन है, किसी भी सीक्वेंस का इन्फीमम, वो उसके लिम इन्फ से हमेशा छोटा होता है, वो उसके लिम सुप से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। और ये आपका सुप्रीमम ऑफ एक्सन से हमेशा छोटा होता है। ये चीजें कोई भी सीक्वेंस आपकी सेटिस्फाई करती है। एंड जो सीक्वेंस एक्शन है, सीक्वेंस एक्शन will be convergent if and only if जो लिम सुप ऑफ एक्शन है, वो आपका लिम इन्फ ऑफ एक्शन के इक्वल आ जाए, ठीक है। यही आपका रिजल्ट था कि लिम सुप क्या होता है और लिम इन्फ क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर एक और रिजल्ट भी है कि अगर आपकी एक्शन और वाई एन दो सीक्वेंसेस है, देन जो लिम सुप ऑफ एक्शन प्लस वाई एन होगा, वो आपका छोटा होगा लिम सुप ऑफ एक्शन प्लस लिम सुप ऑफ वाई एन, ठीक है। और ये चीज आप पहले भी सुप्रीमम वाली चीजों में भी प्रूव कर चुके हैं। सिमिलर आइडियोलॉजी के ऊपर ही आप इस वाली इनइक्वालिटी को भी प्रूव कर सकते हैं। Am I making sense still here? अभी तक हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। हमने क्या किया था, एक सीक्वेंस थी, उसका सबसे पहले सुप्रीमम निकाला, उसके बाद पहले टर्म को ड्रॉप कर दिया, तो बेसिकली एक नई सीक्वेंस मिल गई जो हमारी ओरिजिनल सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कहते हैं हम, ठीक है। फिर उसका सुप्रीमम निकाला, फिर स्टार्टिंग की दो टर्म्स ड्रॉप कर दी, बाकी टर्म्स का सुप्रीमम निकाला, ऐसे निकालते गए और उन सारे सुप्रीमम्स का इन्फीमम ले लिया, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जैम ने और नेट ने पहले भी पूछे हुए हैं। कुछ एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड।
Yes. So this example was asked in CSR Net June 2017. So the question says an is 1 plus minus 1 to the power n into 1 by n whole to the power n. अब इसका पूछ लिया कि लिम सुप बताओ और लिम इन्फ बताओ। अब सबसे पहले आपको एक चीज इस क्वेश्चन को देखते क्या पता होनी चाहिए कि 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन आपकी ई पे कन्वर्ट करती है, 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर एन आपकी 1 अपॉन ई पे कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन ओके, इसका क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। ऑप्शंस क्या दिए हुए थे कि लिम सुप ए एन इज इक्वल टू लिम इन्फ ए एन इज इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन दिया होता लिम सुप ए एन इज इक्वल टू लिम ए एन इज इक्वल टू ई। तीसरा ऑप्शन दिया होता लिम सुप और लिम इन सब बराबर होंगे 1 बाई ई के। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ था कि जो लिम सुप होगा वो तो होगा ई के बराबर और जो लिम इन्फ होगा वो होगा 1 अपॉन ई के बराबर। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अब देखिए a1 टर्म मेरी क्या आ रही है 1 माइनस 1 अपॉन 1 पावर 1। a2 आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर 2। a3 इज 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन 3 पावर 3। a4 आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 4 पावर 4। तो आप देख रहे हैं जो ओड टर्म्स है वो बेसिकली 1 अपॉन ई की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है और जो इवन टर्म्स है वो बेसिकली ई की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर आपने ये चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर ली होती तब भी आप सीधा लिखा देते कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, क्योंकि आपको एक सबसीक्वेंस मिल रही है जो ई पे जा रही है और एक सबसीक्वेंस मिल रही है जो 1 अपॉन ई पे जा रही है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी इसको बाय डेफिनेशन थोड़ा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात देखिए आप, ये जो सीक्वेंस होती है ना 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, ये हमेशा एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है और 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर एन आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो अगर मैं इन टर्म्स में देखूं कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी कि सुप्रीमम देखूं सबसे पहले में, तो आप जानते हैं सुप्रीमम तो हमेशा ई ही आएगा। देखिए अगर मुझे देखना हो सुप्रीमम ऑफ a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सुप्रीमम देखना चाहूंगा तो आप जानते हैं वो क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। इसकी लिमिट क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म एट्थ टर्म वो सब की सब क्या है बढ़ती जा रही है कि जो a2 है वो a4 से छोटा है, वो a6 से छोटा है, वो a8 से छोटा है एंड सो ऑन, ये ऐसे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो बढ़ती ही जा रही है तो सुप्रीमम क्या होगा जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे टर्म होगी वो वाली होगी। इन्फिनिटी पे टर्म कौन सी बैठी है 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। ठीक है, ऐसे अगर मुझे इन्फिमम देखना हो a1 a2 a3 a4 का, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे इसकी लिमिट क्या जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर एन। क्यों, क्योंकि पहली टर्म मेरी क्या आ रही है जो a1 है आप 1 माइनस 1 अपॉन एन है वो आपका क्या है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो आपका किसकी तरफ जा रहा है 1 अपॉन ई की तरफ, राइट। तो यहाँ पे जो इन्फीमम आ गया वो किस पे जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन एन के पास। आप कितने भी टर्म्स ड्रॉप कर दीजिए ये हमेशा 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन की तरफ ही जाएगा। ये जो इन्फीमम है ये हमेशा 1 माइनस 1 अपॉन एन की पावर एन पे ही जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इन सब का यहाँ पे अगर लिमिट लिख भी दूं लिम सुप लिख दूं या फिर यहाँ पे इन्फीमम भी लगा दूं तो भी इसको कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लिमिट तो वहीं पे जा रही है भी। अगर इस चीज को आप ऐसे देखिए कि अगर आपकी कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है x3 लेस देन इक्वल टू x4 एंड सो ऑन,
अब मैं आपको कह रहा हूं इसकी सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, वो तो इन्फिनिटी टाइप ही है अगर ये बाउंडेड नहीं है तो। ठीक है, मान लीजिए कि सीक्वेंस आपकी बाउंडेड भी है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू किसी m से छोटी भी है, ये भी मान लिया। तो जो भी टर्म होगी वो m से तो हमेशा छोटी ही होगी, लेकिन बढ़ती जाएगी। आप पहली टर्म को ड्रॉप कर दोगे तब भी जो सबसे बड़ी टर्म है वो तो लास्ट में बैठी है ना आपकी। अगर आपने पहली दो टर्म ड्रॉप कर दी तब भी सबसे बड़ी टर्म तो आपकी लास्ट में बैठी है। इस सीक्वेंस आपकी इंक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर मान लो आपकी सीक्वेंस डिक्रीजिंग होती, इस टाइप से पैटर्न होता एंड सो ऑन। अब मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी टर्म कौन सी है, तो आप जानते भी सबसे छोटी टर्म तो आखिरी में बैठी है, राइट। अगर आप पहली टर्म को ड्रॉप भी कर देंगे तो भी सबसे छोटी टर्म आखिरी में ही बैठी है। दूसरी टर्म को भी ड्रॉप कर देंगे तब भी आपका इन्फीमम तो बदलना ही नहीं है। समझ में आई बात कि भाई इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर जो सुप्रीमम होता है और लिम्सिप होता है वो सेम होता है। ये लिख लेते हैं हम, इन इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो लिम्सुप होता है मेरा वो किसके इक्वल होता है, सुप्रीमम के। और डिक्रीजिंग सीक्वेंस जब होती है मेरे पास तो जो लिम इन्फ होता है मेरा वो मेरे इन्फीमम के इक्वल होता है। आपको एक बात थोड़ी हैरानी करे शायद, लेकिन इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर ये लिम इफ भी इसके ही इक्वल होता है। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो जो लिम इन्फ है वो भी सुप्रीमम के ही इक्वल हो जाता है, और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो जो लिम सुप है वो भी इन्फीमम के इक्वल हो जाता है। इस चीज को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें, इस एग्जांपल को बस कंसीडर करने के बाद हम ये चीज को इन पर्टिकुलर ऑब्जर्व कर लेंगे, तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो सुप्रीमम वाली टर्म्स है वो हमेशा 1 + 1/n की पावर n की तरफ जा रही है। ये बेसिकली e के इक्वल होता है, राइट। और जो आपका इन्फीमम वाली टर्म है वो 1 - 1/n की पावर n पे जा रहे हैं, जो बेसिकली 1/e है। तो यहां से आपको क्या मिला इस एग्जांपल के लिए इन पर्टिकुलर, जो लिम सुप था वो आपको e मिल गया, और लिम इन्फ है वो बेसिकली 1/e हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जांपल हमने कंसीडर किया था इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि लिम सुप हमने देखा वो किसकी तरफ जा रहा है, e की तरफ। लिम इन्फ हमने इवेल्युएट किया वो किसकी तरफ जा रहा है, 1/e की तरफ। ठीक है, चलिए अब ये जो रिजल्ट देखा इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सपोज xn इज इंक्रीजिंग। अब ये रिजल्ट, ये इनइक्वालिटी तो आपको पता ही है, लिम इन्फ किससे छोटा होता है, लिम सुप से, जो आपका सुप्रीमम से छोटा होता है। सो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि लिम इन्फ है वो सुप्रीमम के इक्वल ही है, तो जो लिम सुप होगा वो भी सुप्रीमम के इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बेसिकली आपको बस इतनी इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। अब एक बात देखिए, सीक्वेंस क्या इंक्रीजिंग, x1 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू x3 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, लिम इन्फ। लिम इन्फ का क्या मतलब है, इस पूरी सीक्वेंस का सबसे छोटा पार्ट उसको सबसे पहले लिखो x1, फिर x1 को ड्रॉप कर दीजिए, x1 को ड्रॉप कर दिया। अब जो सीक्वेंस बच गई उसका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अब कहेंगे x2, तो आप x2 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं x2 को भी ड्रॉप कर दूं तो अब जो सीक्वेंस बच गई उसका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो आपका x3 है। तो बेसिकली आपको करना क्या था, अगेन सुप्रीमम ही तो देखना था इसका। एंड सो ऑन, इसका सुप्रीमम ही तो देखना था, यही तो था आपका लिम इन्फ। हो गया प्रूफ कि लिम इन्फ में आपने क्या कहा कि जो भी मेरी सीक्वेंस है उसका सबसे छोटा टर्म देख लो। अब सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटा टर्म पहली टर्म ही है,
तो पहली टर्म आ गया। उसके बाद आप क्या कहते हो, पहली टर्म को ड्रॉप करके बाकी जो सीक्वेंस बच गई उसकी सबसे छोटी टर्म देख लो, तो वो x2 ही बचेगी, क्योंकि सीक्वेंस अभी भी क्या है आपकी, इंक्रीजिंग ही है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर लिम इन्फ और लिम सुप आपका सुप्रीमम के इक्वल होता है, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर लिम इन्फ और लिम सुप आपका इन्फीमम के इक्वल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? आज हम केवल इसी टॉपिक को डिस्कस करने का हमारा प्लान था कि भी आज हम लिम इन और लिम सुप को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इससे अल्टरनेट ईयर पे किसी ना किसी पेपर में, कभी गेट में, कभी नेट में, कभी आपके जैम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कोई भी सीक्वेंस दे देते हैं एक पैटर्न के साथ और कहते हैं इसका लिम इन्फ बताओ या लिम सुप बताओ, और बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम लिख के आ जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो पाए। एग्जांपल, ये एग्जांपल आपका जैम 2018 में पूछा गया था 2 नंबर के क्वेश्चन में। an को आपको दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इफ n इज ओड एंड 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n इफ n इज इवन। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सुप्रीमम, इन्फीमम, लिम सुप और लिम इन्फ, ये 4 चीज आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। a1 क्या होगा मेरा, n इज ओड, पहले वाले में पुट करेंगे 2 प्लस माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2, 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे n गिवन था, n n and it will be 1, 2 प्लस 1 अपॉन 1, ये हो गया आपका 3। a2 देखूंगा तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वेयर, 1 प्लस 1 अपॉन 4। a3 अगर देखूंगा तो आएगा 2 प्लस माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 3 विच इज 2 माइनस 1 अपॉन 3। a4 देखूंगा तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 विच इज 1 प्लस 1 अपॉन 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत ही इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सुप्रीमम होगा, क्योंकि जो भी टर्म है वो क्या आ रही है 2 माइनस 1 अपॉन 3। फिर नेक्स्ट टर्म चलिए a5 और a6 और लिख लेते हैं। आप ये वेरीफाई कीजिएगा, a5 मेरा 2 प्लस 1 अपॉन 5 है और a6 मेरा 1 प्लस 1 अपॉन 16 है, सॉरी इट इज 16 and it will be 64। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है इनको एक साथ लिख लेते हैं। सीक्वेंस है वो मेरी कैसी दिखने लग रही है, 3 1 प्लस 1 अपॉन 4, 2 माइनस 1 अपॉन 3, then 1 plus 1 upon 16, then 2 plus 1 upon 5, 1 plus 1 upon 64, 2 minus 1 upon 7, 1 plus 1 upon 216 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप ये चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या 2 माइनस 1 अपॉन 3, 2 प्लस 1 अपॉन 5। तो अगर मैं सुप्रीमम की बात करूंगा इसके अंदर तो वो 3 ही है, क्योंकि जो बाकी टर्म्स आ रही है मेरी यहाँ पे वो 2 के सम नेबरहुड के अंदर ही कंटेन हो जा रही है मैक्सिमम। ठीक है, अगर इन्फीमम की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो इन्फीमम मेरा क्या हो सकता है इसके अंदर, अगर इस सेट के इन्फीमम की बात की जाए तो वो क्या होएगा, 1 सबसे पहले टर्म में देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये कहां जा रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन n की तरफ जा रहा है, यानी कि 1 पे। इन्फीमम मेरा इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा तब मेरे को इन्फीमम मिल रहा है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है 1 प्लस 1 बाई 4, उससे छोटा 1 प्लस 1 बाई 16, उससे छोटा 1 प्लस 1 बाई 64, उससे छोटा 1 प्लस 1 अपॉन 216, उससे छोटा 1 प्लस 1 अपॉन 216 इंटू 4, ये ऐसे ऐसे डाउन होता ही जाएगा। तो इन्फीमम मेरा 1 आ गया। अब लिम सुप देखिए, लिम सुप क्या कहता है मुझे, इन्फीमम देखना है किसका, पहले सबसे बड़ी टर्म 3,
उसके बाद पहली टर्म ड्रॉप कर दी, उसके बाद सबसे बड़ी टर्म क्या आ रही है मेरे पास, 2+1/5, ये वाली टर्म सबसे बड़ी आएगी। दो टर्म ड्रॉप कर दूंगा तब भी मेरे पास वही टर्म रहेगी, तीन टर्म ड्रॉप कर दूंगा तब भी मेरे पास टर्म वही रहेगी, चार टर्म ड्रॉप कर दूंगा तब भी मेरे पास टर्म यही रहेगी। बट जैसे ही मैंने फिफ्थ टर्म ड्रॉप की तो सबसे बड़ी टर्म मेरी क्या बन जाएगी, 2+1/9। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी टर्म मेरी क्या बनेगी, 2+1/13 एंड सो ऑन। ऐसे अगर मैं लिम इन्फ की बात करूं तो सबसे छोटी टर्म देखनी है मुझे, इसके अंदर सबसे छोटी टर्म क्या आएगी मेरी, 1। सबसे पहले मुझे सुप्रीमम देखना है और सबसे छोटी टर्म देखनी है 1, क्योंकि मेरा क्या जो इन्फीमम है वो कहां एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करने लग रहा है। ठीक है, तो सुप्रीमम 1, फिर 1, फिर 1 सोन, ये तो 1 ही रहेगा, राइट। लिम इन्फ के अंदर तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर मेरी टर्म्स क्या है, बार बार डिक्रीज ही होती जा रही है समवे, और जो मेरा इन्फीमम था वो मेरा इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहा था। अगर यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे मेरे को जीरो टर्म और दी होती, सपोज कीजिए मुझे कहीं पे यहाँ पे जीरो टर्म और इंक्लूड होती, तो इन्फीमम मेरा जीरो बन जाता, राइट। लेकिन लिम इन्फ मेरा वो क्या रहता है, सबसे पहले 0 0 देन 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम देखना है आपको, और यहाँ पे इन्फीमम, इसको आप चेक करेंगे तो क्या आएगा, इन सबसे सबसे छोटी टर्म कहां कन्वर्ट कर रही है, ये बेसिकली एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टाइप है, 3 है, फिर 2+1/5, फिर 2+1/9, 2+1/13, कहां कन्वर्ट कर रहा है ये, 2 पे। ये बेसिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, कन्वर्ट कर रहा है 1 पे। तो इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। तो देखा आपने कि जो सीक्वेंस थी ये कितनी शानदार सीक्वेंस थी, कि 0 < <1, < <2, < <3, ये आपका इन्फीमम, ये आपका लिम इन्फ, ये आपका लिम सुप, और ये आपका सुप्रीमम। एक ही एग्जांपल में आपको सारे टाइप के केसेस देखने को मिल गए, कहां पे वैल्यू कभी एक बार इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम हमारा आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड join our telegram channel, and please do share these videos among your friends, and thank you so much for watching.